can say problems while using internet. We have some ethical issues. So one by one we have to see what are the ethical issues while using the internet. See, these days we can easily say that our society is information society and our era is information era. Okay, information is what? Tell me students, what do you mean by information? जानकारी सर. Yes. Process data. Process data is known as what? Information. ठीक है ना? तो process data means what? एथिक्स मींस क्या होता है? Ethic means ethics, moral. Ethic means what? Moral. Do you know na moral? Moral. That is your ethics. ठीक है? Or you can say the rules. ठीक है? For understanding, you can say rules also. ठीक है? So nowadays we know that it very well कि rules you can say. ठीक है? Today's world is the world of information. ठीक है? Everywhere we just see the information in the sense the process data. ठीक है? That we kept in our computer system. ठीक है? So see, our era is the information era. Our society is the society of information. Everywhere we just see the information. As we all know that information is the means to acquire knowledge. In other words, we can say that information forms the intellectual capital for a person or a body. Okay? It is the intellectual property. If information belongs to me, means that is my property. Okay? If information belongs to me, if any information belongs to me, okay? Suppose that I have my Facebook account. I have my Facebook account, so that is my intellectual property. That is my intellectual property. That all information belongs to me, so that is my intellectual property. However, there are many ethical issues involved with the usage and availability of information. Okay? So many ethical issues we have, okay, regarding the information. Okay? First, some common ethical issues are intellectual property rights, plagiarism, digital property rights. Okay? There are, here we have to study only 3 common ethical issues. First is your intellectual property right. Okay? Second, plagiarism, and third is your digital property right. So one by one you have to understand these 3 topics are really very important. Try to understand. Sorry? SSL. SSL. Security socket layer. It is a layer, or you can say that it is a security type security. Okay? That is used in between web browser and server. That is used in web browser and server. Clear? SSL, security socket layer. It is a layer that is built in between web browser and server. Web browser and server. Clear to every? Clear? SSL is clear. Can I move? Yes, sir. No, Okay. sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. Listen once again. SSL, security socket layer. Security socket layer. First of all, try to understand the full form of this SSL, security socket layer. It is a layer that is made over the in between the web browser and server. In between the web browser and server to protect the transmissions in between web browser and web server. Okay? To protect the things, okay, while transferring. Suppose that you are just transferring data from your web browser to the server. From your web browser to the server means from your computer system to the server. In between, there will be a security layer. Okay? That security layer is known as what? Security socket layer. Clear? Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yes, Let's move for our next topic. Okay? Ethical issues. Yes, sir. Okay. So see what is intellectual property rights. See, as mentioned earlier, information makes intellectual property. With the help of information, we just make our intellectual rights. Okay? Information makes intellectual property. Any piece of information is product are created with a lot of effort and it consumes a lot of time. As we know that, okay, if we are going to create anything, suppose that you are just creating a software. You are creating a software means that software take a lot of effort and a lot of time also. Okay? Suppose that you are going to create any software, so means that software take a lot of effort, means you will give your time. Okay? Effort means time, knowledge you can give, okay, for that software, and time also we can spend, means see, the cost of factor is also involved with the creation or production of information. Okay? Money cost also involved if you are going to create anything. Okay? Means
suppose that you are creating a software, so that software need money also, means they will that software will take money also, ठीक है, time, effort, money, these are all things belongs to you, ठीक है, if you are creating that software. Though once produced it becomes very easy to duplicate it or share it with others, ठीक है. Suppose that anything is already just created, so it's really becomes very easy to copy that things, but this very things makes information difficult to safeguard unlike tangible property. Third, fourth, fifth chapter. Sorry, later on we will study, ठीक है ना, later on we will study, ठीक है. This time we have to we are going to study only chapter number 6. It's really very, यहाँ देखो क्या रहा है ये चीज, ठीक है. कह रहा है कि कोई भी चीज अगर आप बनाते हो, जैसे मैंने अभी आपको सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताया, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आप बनाते हो तो उसमें क्या लगता है आपको, टाइम, एफर्ट, मनी, ठीक है, टाइम, एफर्ट, मनी, ये सारी चीज आपकी लगती है, ठीक है. अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज आप क्रिएट करोगे तो उसमें क्या लगता है आपको, समय लगता है, ठीक है, एफर्ट लगेगा, नॉलेज लगेगा और पैसा भी आपका लगता है, ठीक है. वी विल जस्ट गिव मनी आल्सो फॉर दैट थिंग्स, ठीक है. लेकिन अगर उसी चीज को किसी को कॉपी करना हो, ठीक है, एक बार बन गया तो दूसरा उसको क्या कर लेगा, तुरंत कॉपी कर लेता है, तुरंत उसको क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, ठीक है. लेकिन ये क्या है, प्रॉब्लम है, ये क्या है, प्रॉब्लम है. सी, बट दिस वेरी थिंग्स मेक इन्फॉर्मेशन डिफिकल्ट टू सेफगार्ड अनलाइक टेंजिबल प्रॉपर्टी. और इसी से क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें अपनी चीजों को क्या करना होता है, सेफगार्ड रखना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई भी कॉपी कर लेगा किसी चीज को, ठीक है, तो जिसने फर्स्ट टाइम क्रिएट किया उसके एफर्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है, उसके टाइम का कोई वैल्यू नहीं रह पाएगा, उसने अगर मनी स्पेंड किया है, ठीक है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक है. तो द क्रिएटर और प्रोडक्टर ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रियल ऑनर ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है. कोई भी अगर कोई किसी चीज को क्रिएट करता है तो वो उसका क्या है, रियल ऑनर होगा, ठीक है. अगर मैंने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, किसी भी सॉफ्टवेयर को मैंने क्रिएट किया, तो मैं उसका क्या हूँ, रियल ऑनर हूँ, ठीक है. कोई दूसरा उस पर कोई राइट नहीं है, कोई उस पर उसका हक नहीं हो सकता है, ठीक है. एंड द ऑनर हैज एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज और हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है. जो भी ऑनर होगा उसका पूरी तरीके से उस प्रोडक्ट पे, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन पे पूरा राइट होगा, जैसे चाहे वो क्या कर सकता है, उसको शेयर कर सकता है, ठीक है. जितना चाहे वो क्या कर सकता है, उसके कॉस्ट को वो डिफाइन कर सकता है दूसरों के लिए, ठीक है. टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वंस कैन गेट इन्फॉर्मेशन कॉपीराइटेड आर पेटेंट आर यूज ट्रेडमार्क, ठीक है. आप लोगों ने ये सब वर्ड्स सुने भी होंगे, जैसे कॉपीराइट हो जाता है, ठीक है, पेटेंट करा लिया जाता है, ठीक है, या फिर यूज ट्रेडमार्क, तो ट्रेडमार्क को भी यूज कर लिया जाता है, ठीक है. अगर मैंने इस प्रोडक्ट को बनाया, सपोज दैट इस प्रोडक्ट को मैंने बनाया, तो इसमें मेरा क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये मेरा पेटेंट हो गया और ये मेरा ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है. कोई दूसरा इसको अब नहीं बना सकता है, ठीक है. अगर दूसरा बनाता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसकी ट्रेडमार्क हो जाएगा और उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा. अरे बात समझ सबको? No, sir. हेलो. Yes, sir. आ रहा है इंटेलेक्चुअल, सर. हाँ, नहीं इंटेलेक्चुअल समझ में आया। प्रॉपर्टी, एक बार अगर आप लोग डेफिनेशन इसको देखोगे तो यही बताएगा आपको. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको यही बताता है कि जैसे कोई भी चीज अगर आपका क्रिएट होता है, ठीक है, तो जो उसका ऑनर होगा वही उसका क्या होगा, उसका पूरी तरीके से उस पर राइट होगा. जो ऑनर होगा उसका उस प्रोडक्ट पे पूरी तरीके से उसका क्या होगा, राइट होगा. मीन्स उसका कॉपीराइट होगा, उसके लिए वो पेटेंट करा दिया गया और उस पे उसका क्या हो गया, ट्रेडमार्क हो गया. कोई दूसरा उसको अब अपना नहीं कर सकता है, ठीक है. अगर किसी प्रोडक्ट को किसी ने भी बना दिया तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, उससे बिलोंग करता है, ठीक है. उसके सारे राइट्स उसके पास चले गए. मीन्स कि वो कितना शेयर करना चाहता है, ठीक है, कितना उसकी प्राइस रखना चाहता है, कितना इन्फॉर्मेशन वो दूसरे को बताना चाहता है, उसमें से सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, जो ऑनर होगा उस पर डिपेंड करता है. उसी को क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहा जाता है. आई बात समझ में? अरे बात समझ में? Yes, sir. ओके, Yes, बोला sir. करो आप लोग, कम से कम Yes, इतना sir. तो बोल ही सकते हो. यस सर, नो सर तो बोल ही सकते हो ना, तभी तो मैं समझ के आगे Yes. बढ़ूंगा, ठीक है. और एकदम आराम से चलना, रिलैक्स Yes, मत. जब sir. तक आपको नहीं समझ में आएगा, मेरी तरफ से कोई जल्दी नहीं है. आई एम नॉट इन हरी, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है. आई विल टेक द एक्स्ट्रा क्लास आल्सो. अगर सिलेबस खत्म नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, उसमें क्या है. लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है. अब फिर नहीं बोल रहे हो आप लोग. Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रांगली Yes, sir. Yes, sir. आप लोग कम से कम बोलें, ठीक है. बात तो आपकी हमारी. कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी sir. दिमाग में आता है, ऐसा नहीं कि दूर है तो नहीं होगा, ठीक है. आप पूछ सकते हो, यू आर फ्री टू आस्क. आई एम केपेबल टू आंसर यू, आई एम एबल टू आंसर यू, आई एम हियर ओनली फॉर यू, ठीक है. Yes, sir. ओके,
ठीक है, तो ये समझ में आई ना Yes, बात, sir. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। ठीक है, कोई भी अगर किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करता है, बनाता है, तो उसका क्या हो जाएगा, उस पर राइट होगा। ठीक है, उसी को उसका क्या कहा right जाता है, होगा। हाँ, उसका राइट मीन्स, राइट, राइट अधिकार, मीन्स, हाँ, अधिकार, ठीक है, वो उसका अधिकार। हकदार होगा। ठीक है, अधिकार अधिकार सर अधिकार वो चाहे तभी शेयर कर सकता है वो प्रोडक्ट। हाँ, वो चाहेगा तभी, जितना चाहेगा उतना शेयर करेगा, जितना नहीं चाहेगा वो उतना नहीं शेयर कर करेगा। सकता। ठीक है, वो कॉस्ट अभी आएगा कि पैसा भी उसको डिफाइन करना है कि ठीक है, इस प्रोडक्ट को अगर मैंने बनाया है, ठीक है, ये प्रोडक्ट अगर मैंने बनाया है, व्हाट इज दिस इन माय हैंड, टेल मी। सैनिटाइजर, सैनिटाइजर, बोतल है, हैंड सैनिटाइजर, हाँ, सर सैनिटाइजर बोतल है। सैनिटाइजर सर हाँ, अगर इसको मैंने क्रिएट किया है, तो ये पूरी तरीके से क्या है, मेरी कोई प्रॉपर्टी भी होती है, सैनिटाइजर। इस पे पूरा मेरा हक है। जितना चाहे मैं उसका क्या कर सकता हूँ, इंफॉर्मेशन इसमें शेयर कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना मैं प्राइस डिफाइन कर सकता हूँ, जितना चाहे उतना प्राइस में इसको क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये मेरे ऊपर है। ठीक है, अब प्राइस ऐसा नहीं है कि अभी लाखों रुपए का हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं है, नो सर, नहीं, No, क्योंकि sir. मुझे No, अब sir. उस समय मुझे मार्केट पता होगा। ठीक है, कि मार्केट में ये पता होगा कि अगर ये 50 रुपीज का अवेलेबल है तो मैं इसको 50 ही रखूंगा। अगर मेरा ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है तो इसको मैक्सिमम में कितना रख सकता हूँ, 60 रुपीज रख सकता हूँ, मैक्सिमम में क्या रख सकता हूँ, 60। अब 70 रखूंगा तो कोई खरीदेगा इसको, नो सर नहीं खरीदेगा। नो No, तो sir. सारी चीजें वो मार्केट स्टडी करके ही रेट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कोरोना काल में खरीद लेंगे। हाँ, the ethical issue involved with it is that information must not be exchanged without the consent of its owner। ठीक है, कुछ भी अगर इंफॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो ऑनर के ऑर्डर से ही होगा। ठीक है, ऑनर के नॉलेज में रहते ही होगा। द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट, encourage individual and business to create new software and new software application as well as improving existing applications। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी के राइट से जो नए सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स हैं उनको क्या वो उन लोगों को इंकरेजमेंट होती है कि वो भी क्या कर सके, नई से नई चीज़ों को, नई से नई टेक्नोलॉजी को वो भी क्या करें, इन्वेंट करें। ठीक है, जो भी करना चाहे वो क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ठीक है, next, ensure new ideas and technology are widely distributed। new ideas, new technologies are distribute होता है। promotes investment in the national economy। ठीक है, नेशनल इकोनॉमी में भी आपको हेल्प मिलता है, नई चीजें इन्वेस्ट होंगी, क्रिएट होंगी, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी आएगी। जब इकोनॉमी आएगा तो नेशनल इकोनॉमी में भी आपको हेल्पफुल होता है। ठीक है, लेट्स सी द प्लेगरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ रहा है प्लेगरिज्म। ट्राई टू लिसन दिस टॉपिक केयरफुली। सिंपली पुट, प्लेगरिज्म मीन्स स्टीलिंग। स्टीलिंग मीन्स व्हाट? स्टेलिंग, चुराना। यस। ठीक है, तो दिस वर्ड रिलेटेड टू योर, चुराना हाँ, so this word plagiarism is related to stealing। Surprised? If you look into an English dictionary to find the meaning of word plagiarism, it will give somewhat like the unauthorized use of close imitation of the language and thoughts of the another author and the representation of them as one's own original work। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है प्लेगरिज्म। ठीक है, अब आप जानो ये प्लेगरिज्म क्या है। जैसे कोई भी चीज किसी ने बनाया, ठीक है, सपोज दैट मैंने अभी एग्जांपल दिया इस हैंड सैनिटाइजर बोतल की, अगर मैंने बनाया, ठीक है, और आपने उसको क्या कर लिया, चुरा लिया। आपने उसको क्या कर लिया, चुरा लिया, और उसमें आपने अपना नाम डाल दिया। इस पूरे प्रोसेस को ही प्लेगरिज्म कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म कहा जाता है। किसी के वर्क को क्या कर लेना, चुरा लेना, और अपने नाम से क्या कर देना, फिर उसको पब्लिक कर देना। ठीक है, मार्केट में ला देना। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, प्लेगरिज्म। See the definition. Plagiarism is the stealing someone else's intellectual work and representing it as your own work without citing the source of information। किसी के भी वर्क को चुरा लेना, ठीक है, और अपने नाम पे उसको क्या कर देना, वायरल कर देना। That process is known as what? Plagiarism। That process is known as plagiarism। आई बात समझ में? किसी अदर वर्क को, किसी दूसरे के वर्क को क्या कर लेना, चुराना, फिर अपने नाम से क्या कर देना, वायरल कर देना, पब्लिक में डाल देना। ठीक है, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, प्लेगरिज्म। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, प्लेगरिज्म। ठीक है, थस प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, कैन बी एन, अब ये क्या क्या हो सकता है उसको देखो आप। कैन बी एन आइडिया, लिटरली वर्क और एकेडमिक वर्क। ठीक है, कुछ भी, अगर जैसे मान लो कि कोई पोएट है, कोई क्या है, पोएट है, ठीक है, उसने कोई अपने क्या लगे पोएट्री लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरे ने उसको क्या कर लिया, चुरा लिया, और उसको अपने नाम से पब्लिश करा दिया, अपने नाम से क्या करा दिया, पब्लिश करा दिया, तो दैट थिंग इज नोन एज व्हाट, प्लेगरिज्म। उसी को क्या कहा जाएगा, प्लेगरिज्म कहा जाएगा। सी, एंड रिप्रेजेंटिंग इट एज आवर ओन वर्क
विदाउट गिविंग क्रेडिट टू क्रिएटर और विदाउट सेटिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर उसमें कुछ ने उसको कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, उसने उसको क्या कर दिया, कोई क्रेडिट भी नहीं दिया, कहीं नाम भी मेंशन उसका नहीं किया, ठीक है ना, तो इस पूरे को प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म कहा जाता है। ठीक है, मैंने चुराया, ठीक है, नहीं, लेकिन मैंने उनको बता दिया, मैंने उनको क्या कर दिया, बता दिया गया, तो प्लेगरिज्म नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है, जैसे आप लोग, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ तो जो भी आप लोग देखते हो कि मूवीज वगैरह जो बनती है तो बायोपिक बनती है, बायोपिक समझ में आ रहा है, बायोपिक मूवी, यस सर। जैसा कि हाँ देखा सर, जाए उनके तो ऊपर हाँ, अभी वो सुशांत सिंह MS राजपूत ने धोनी, MS धोनी का क्या MS है ना, धोनी, क्या नाम था MS उस धोनी, movie का? सचिन तेंदुलकर। एक्टिव एंड फैशनेबल। हाँ MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। हाँ सर हाँ MS धोनी, अभी एक Untold रणबीर Story। कपूर ने भी संजू किया हुआ था। बारला यस सर। हाँ संजू भी किया था ना, वो बायोपिक ही एक तरीके से। वीडियो तो पॉज हो यस गया है। सर। हाँ, तो संजय संजय दत्त No, ने क्या sir. किया होगा, अलाउ किया होगा कि हाँ ठीक है, आप मेरी क्या कर सकते हो, बायोपिक आप बना सकते हो। ठीक है, तब आप बना सकते हो। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपका प्लेगरिज्म नहीं होगा। ठीक है, अगर वही मूवी बनता, ठीक है, और बिना संजय दत्त के नॉलेज में लिए हुए उस मूवी को बनाया जाता, बिना महेंद्र सिंह धोनी के नॉलेज में लिए हुए बनाया गया होता, तब उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म कहा जाता है। आई बात समझ में ना। ठीक है, अगर उसको क्या कर दिया गया, बता दिया गया कि हाँ सर हम आपकी मूवी बनाने जा रहे हैं, तो वो क्या कर देता है, अलाउ कर देता है, वो पैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, पैसे चार्ज करते हैं उस काम के लिए। जैसे मूवी बन रही है, अगर संजय दत्त ने मूवी बना तो वो क्या करेगा, पैसा चार्ज करेगा। हाँ ठीक है, आप अपने प्रॉफिट में से इतना शेयर मुझे आप दोगे। ठीक है, वो अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसा लेता है कि नहीं लगता है, लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग, पैसा लेते हैं। अगर बायोपिक बनती है, मूवी वगैरह बनती है, तो क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। ठीक है, तो वही अगर बिना बताए हुए उसको मूवी बना देते हैं, तब उसको प्रोसेस पूरे उस वर्क को ही क्या कहा जाता है, प्लेगरिज्म कहा जाता है। आई बात समझ सबको। यस यस हाँ सर। ठीक है, यस अगर आप कभी भी ऐसा काम करते भी हो, ठीक है, तो आप उसको बता दो कि हाँ सर मैंने आपका ये इस सॉफ्टवेयर से थोड़ा सा चीज़ों को मैंने लिया है और मैं आपको क्रेडिट दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बिना क्रेडिट दिए आपको इसका मैं ऑनरशिप ले लूंगा, मैं आपका नाम कहीं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और या फिर कुछ आपको इसमें से शेयर में आपको जो मनी की शेयरिंग होगी, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयर होगा, मैं उसमें से आपको भी क्या करूंगा, हिस्सेदार रखूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब वो प्रॉब्लम होती है, उसको प्लेगरिज्म कहा जाता है और ये ऑफेंस है। और ये क्या है आपका ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स जुर्म, अपराध। हाँ, ये क्या होता है, अपराध। ये आपको एक ऑफेंस माना जाता है। ठीक है, अपराध कानून माना जुर्म है। जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है आईपीसी में। सजा। हाँ, इंडियन पेनल कोड में इसके लिए क्या है, सजा निर्धारित है, तो आपको सजा भी हो सकती है। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड बी टर्म्ड एज प्लेगरिज्म। ठीक, कुछ चीजें बता रहा है कि अगर इनमें से इन सारे चीजों में से कुछ भी अगर आप करते हो तो आपका प्लेगरिज्म माना जाता है। सी यूजिंग सम अदर्स ऑथर्स वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू ऑथर, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, किसी भी ऑथर, ऑथर मीन्स जो लगता है ऑथर, ऑथर जो अपना हाँ, जो राइटर होता है, जो लिखते हैं। ठीक है, हाँ, राइटर्स होता है। डायरेक्टर इसके यहाँ से कंपन इतना ज्यादा हो रहा है, ठीक है, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगी। ठीक है, तो ध्यान रहे। ऑथर, ठीक है, तो किसी भी ऑथर के पोइट्री है, उसको अगर आप अपना अपना अगर आप उसको क्या करते हो, उसको आप अपने पे शो करते हो, उसकी पोइट्री को आप अपना नाम देते हो, ठीक है, तो एक तरीके से प्लेगरिज्म है। ठीक है, अगर उस ऑथर को आप बताते नहीं हो तो। नेक्स्ट, यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फॉर्म देन इंटेंट ओरिजिनल बाय द ऑथर आर क्रिएटर, किसी दूसरे के वर्क को अपना बना लेना। ठीक है, किसी दूसरे को वर्क को क्या कर लेना, अपना बना देना। ठीक है, और बोला कि उसको हाँ मैं ऑनर हूँ, ये प्लेगरिज्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉडिफाइंग और लिफ्टिंग समन्स प्रोडक्शन सच एज म्यूजिक कंपोजिशन एटसेट्रा विदाउट एट्रीब्यूटिंग इट टू द क्रिएटर ऑफ द वर्क। ठीक है, किसी के म्यूजिक को भी आप नहीं ले सकते। ठीक है, अगर एक बार वो क्या हो गया, कंपोज हो गया, किसी कंपोजर ने उसको क्या कर दिया, कंपोज कर दिया, तो अब दूसरा कोई जो सिंगर है या फिर कंपोजर है उसको वो अपना नहीं बना सकता। ठीक है, अगर वो बनाता है तो उसको क्रेडिट देगा, उसको क्या करेगा, क्रेडिट। जैसे रिमिक्स आ रहा है ना आजकल, पूछने वाली थी, तो क्या वो हाँ। प्लेगरिज्म है? कब प्लेगरिज्म है, लेकिन अगर उसने उसको क्रेडिट दे दिया, उसने उसको क्या कर लिया, पूछ के बनाया, तो प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, आप देखते भी होंगे कि कई सारे लोग उस पर क्या करते हैं, केस भी कर देते हैं कि नहीं नहीं ये क्या है, मेरे बिना कंसर्न के, बिना मेरे नॉलेज के इन्होंने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। तो उस कंडीशन में उनको तो हरासमेंट होगा, हरास होगा, वो उसको हरासमेंट होगा, प्रॉब्लम होगी उनको। सर हाँ बोलो।
कौन ये रोड पे ही बैठ गया पढ़ने? सर कोई अगर सिंगर है और वो अपना जो व्यूज होता है वो खरीद लिया तो सर हाँ? वो क्या होगा? क्या चीज? व्यूज खरीद लिया सर, व्यूज होते हैं ना वो सर कोई मैटर नहीं किसी भी करता, वीडियोस वो पे। नहीं, वो नहीं, वो कोई मैटर नहीं करता। वो व्यूज इन द सेंस वो अपना क्या है सर, लाइक्स वगैरह बढ़ा रहा है, ठीक है, उससे उसको पैसा मिलना है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी आपको यहीं पे जाना है कि जो भी म्यूजिक कंपोजर्स वगैरह है, अगर एक बार कोई भी म्यूजिक कंपोज हो गई, ठीक है, तो जिसने म्यूजिक कंपोज किया वो उसका क्या हो गया, कॉपीराइट हो गया, उसका पेटेंट हो गया, उसके लिए वो ट्रेडमार्क हो गया। कोई दूसरा अब उस म्यूजिक कंपोजिशन को नहीं यूज कर सकता। अगर यूज करेगा, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, पूछना होगा उससे। जैसे उससे क्या होगा, उसको पूछना होगा। जैसे आजकल जो भी आपके Yes, songs के जो रिमिक्स आते हैं ना, ठीक है, जो भी सॉन्ग्स के आपके रिमिक्स आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके, यस सर। वो कॉपीराइट ऑलरेडी होगा, ठीक है, उन्होंने क्या किया होगा, पूछा होगा, जाना होगा उनसे, तब जाके वो क्या किए होंगे, कंपोज किए होंगे, ठीक है। सुनाओ कोई एक रिमिक्स बताओ। हेलो, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट, गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज रॉन्गफुल सिटेशन, ठीक है। अगर आप कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी अगर आप शेयर करते हो किसी भी क्रिएटर के रिलेटेड, तो उसको भी प्लेगरिज्म माना जाता है, ठीक है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही आपको शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फेल्योर इज गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर इन अ collaborative effort to which you are also part of. Failure in giving credit or acknowledge the contribution of others in a कोलैबोरेटिव एफर्ट टू विच यू आर आल्सो पार्ट ऑफ, ठीक है। अगर आप किसी को क्रेडिट देने में फेल्योर हो जाते हो, ठीक है, collaborative. हाँ, कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेटिव एफर्ट मतलब कि किसी टास्क को करने में उसको एफर्ट लगा होगा ना, अच्छा, हाँ, तो उसको अगर आप क्रेडिट नहीं देते हो, ठीक है, किसी भी टास्क को अगर आपने लिया, ठीक है, अगर आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो उस तरीके से आपको प्लेगरिज्म उसी को माना जाता है। हाउ नॉट टू प्लेगरिज्म, कैसे प्लेगरिज्म नहीं होगा। सी, at most universities put in their student handbook to avoid plagiarism you must give credit whenever you use, ठीक है, कि कभी भी आप किसी भी बुक ऑथर को अगर आप यूज करते हो, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें उसको क्रेडिट देना होता है। सी, अनदर पर्सन आइडिया ओपिनियन और थ्योरी, किसी के भी आइडिया को अगर आप लेते हो, ठीक है, जैसे होता है आइडिया इन द सेंस कि कोई भी आइडियम्स है। जैसे आपको पता है कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था आपसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो तो मैं कह सकता हूँ ना, मैंने तो उसको बनाया नहीं था। आई एम द नॉट द क्रिएटर, आई एम नॉट द क्रिएटर ना, ठीक है। तो जब भी मैं ये कहूंगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं बताऊंगा कि ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है, मैं उनको क्रेडिट दूंगा। तो कोई भी आइडिया होती है, कोई भी थॉट्स होता है, कोई भी व्यू होता है, कोई भी थ्योरी है, ठीक है। अब इस बुक को ही, अगर बुक को तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, नो डाउट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आई एम योर टीचर, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग, बट आई एम द नॉट द राइटर ऑफ दिस बुक। So whenever we just talk about this book, ठीक है, तो I will just give credit to the Sumita Arora. I will give the credit to the Sumita Arora. Why Sumita Arora? Sumita Arora is the writer of this book. Because Sumita Arora is the writer of this book. writer of book. This book. So whenever we will talk about this book, so its credit goes to Sumita Arora. ठीक है, we are all just studying and I am just teaching. ठीक है, my work is only teaching. I am the not the writer. ठीक है, this book not belongs to me, ठीक है, as a writer, ठीक है। whenever we just discuss any theory related to this book, so I will give credit to the Samhita Arora. Quotation of another person actually spoken or written words etc. Quotation, ठीक है, quotation, suppose that I had given the example like तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो this quotation given by सुभाष चंद्र सुभाष चंद्र बोस। बोस। हाँ, do or die करो ये हमारा हाँ, महात्मा गांधी, ठीक है। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, नॉट पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, this is लाल बहादुर शास्त्री। So these are the quotations given by a particular person, ठीक है ना, तो no one can other use this quotation, ठीक है। Now think paraphrases of another person spoken and written words, ठीक है, any type of words spoken by any other person, ठीक है, that belongs to them also only, ठीक है, not to any other,
तो these are all if we are just doing, so these things are not plagiarism. अगर इन सारी चीजों को आप करते हो, किसी को क्रेडिट कर देते हो आप, किसी को आप क्रेडिट बता दे देते हो, तो प्लेगरिज्म नहीं होता है, ठीक है। प्लेगरिज्म इज ऑफेंस, प्लेगरिज्म इज ऑफेंस, मैंने बताया ना आपको। इस तरीके की चीजें अगर आप करते हो तो ये क्या है, आपका ऑफेंस है, ठीक है। किसी की म्यूजिक कंपोजिशन को चुराना, ठीक है, किसी के ऑथर के राइट्स को चुराना, ठीक है, वो सब क्या होता है, ऑफेंस होता है। इफ यू आर जस्ट स्टीलिंग, इफ यू आर जस्ट स्टीलिंग any work, ठीक है, of any another person, that is what offense. See, if plagiarism involves copying not only ideas but also a sustainable portion of copyrighted work without attribution or without permission, it would amount to both copyrighted infringement and the violation of the special right of the author to be created, ठीक है। अगर कोई कॉपीराइटेड है, अगर उसको क्या करते हो, उसको शेयर करते हो आप, ठीक है, और उसको क्रेडिट अगर आप नहीं देते हो, तो एक तरीके का आपको ऑफेंस माना जाता है। Copyrighted infringement and the violation of the author's right to be credited are both civil wrongs and criminal offense. Criminal offense, ठीक है। Criminal means what? अपराधी। Civil suit may be instituted and criminal charges may also be filed, ठीक है। आप पे क्रिमिनल चार्जेस फाइन होंगे, ठीक है। अगर आप चार्ज फाइन नहीं करोगे तो आपको जेल भी हो सकता है। ओवरऑल बोथ सिविल सूट एंड क्रिमिनल चार्जेस आर पनिशेबल ऑफेंस एंड अमाउंट टू फाइन एंड पेनाल्टीज, ठीक है। आप पे फाइन लगेगा, आप पे पेनाल्टी लगेगा, ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो। कितने लोग करने जा रहे हैं ऐसा? मैं नहीं करने वाली। और कोई है क्या जो करेगा? यस सर। कौन है? सर दिव्या। लेकिन आपको लोग पता होना चाहिए कि ऐसा अगर नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते, ठीक है। ये सब भी जो भी चीजें आप एंड्रॉइड वगैरह देखते हो ना, ये सब कॉपी है, ये सब कॉपी किया हुआ है, सब सारे के सारे चीजें कॉपी की जाती है, सारे चीजें कॉपी की जाती है। हाँ, बाद में उसको क्या कर ला लेते हैं, कॉपीराइट अपना ले लेते हैं, पेटेंट अपना ले लेते हैं, ट्रेडमार्क उस पे ले लेते हैं। अगर कॉपी नहीं होगा तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। आप मुझे कॉपी करते हो, ठीक है, मैं किसी को कॉपी करता हूँ, इस तरीके से ही हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिपीट हो रही है। आ रही बात समझ में? अगर कॉपी नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। अपना आइडिया तो होता ही है, नो डाउट, लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे को देख के ही तो सीखेंगे। हेलो, क्या हुआ, किसका ये वीडियो बजने लगा? रिपीट हो रही है। आपकी साउंड रिपीट हो रही क्या है। हुआ? रिपीट हो रही है। सर आपकी साउंड रिपीट हो रही है। आप लोग थोड़ी देर चुप हो जाओ। अब ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए यस सर। लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, ये आपकी एक प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट इसको कहा गया है। डिजिटल प्रॉपर्टी, डिजिटल एसेट refers to अरे ये हेलो हेलो यस सर। हाँ सुनो, Yes, sir. digital property or digital asset refer to any information about you or created by you that is exists in digital form either online or an electronic storage device. All of your digital property comprise what is known as digital e-state. कह रहा है कि जो भी चीज अगर डिजिटली क्रिएट किया गया है, ठीक है, मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपका कहाँ पे है, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, दैट इज योर डिजिटल राइट, ठीक है। एंड इफ एनीथिंग क्रिएटेड बाय यू और एनी अदर पर्सन, ठीक है, दैट विल बी रिमेन इन डिजिटल फॉर्म ओवर द इंटरनेट, ठीक है। अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है, जैसे सपोजेड अगर आप अपने फेसबुक की आईडी ही अगर आपने बना रखी है, तो वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, डिजिटल ठीक है। फॉर्म में। चाहे वो आपका किसी स्टोरेज डिवाइस में आप उसको सेव कर दो, ठीक है, चाहे आप कहीं उसको ओवर द इंटरनेट ही, ओवर द सर्वर ही अगर आप स्टोर करते हो, तो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल मींस व्हाट? डिजिटल फॉर्म। डिजिटल मींस व्हाट? ऑनलाइन। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हाँ, in electronic form, in electronic form, that is in zeros and ones, that is in zeros and ones, zeros और ones के ही हमेशा फॉर्म में रहेगा, बाइनरी फॉर्म, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में ही वो हमेशा रहेगा, ठीक है। दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। तो एक बार डेफिनेशन था, आप लोग फिर से देखेंगे आप। डिजिटल प्रॉपर्टी रिफर्स टू एनी, हाँ हम लोग जो स्टोरी क्रिएट करेंगे वो भी हो सकता है इसमें। हाँ, सारा अगर आपने ऑनलाइन बना दिया है तो वो आपको डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा,
ठीक है। पेपर Okay, पेन, पेपर कॉपी पे अगर आपने नहीं लिखा, ठीक है, पेपर कॉपी पे नहीं लिखा, आपने कहाँ लिख दिया? ऑनलाइन कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे लिखा, ठीक है। इंटरनेट पे अगर आप उसको डाल रहे हो, मतलब कि हाँ, कंप्यूटर किसी डिवाइस पे आपने उसको डाल दिया, ठीक है, तो क्या रहेगा हमें, वो किस डिजिटल प्रॉपर्टी। डिजिटल फॉर्म में रहेगा, दैट इज योर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट। सी द डेफिनेशन वंस अगेन, ठीक है। डिजिटल प्रॉपर्टी रिफर्स टू एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू, ठीक है, आपसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आर क्रिएटेड बाय यू, ठीक है, या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपने क्रिएट किया है, दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल फॉर्म आइदर ऑनलाइन, ठीक है, आर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है, चाहे आप ऑनलाइन हो या फिर उसको आपने क्या कर दिया, उस इंफॉर्मेशन को कहीं क्या कर दिया आपने, सेव भी कर दिया, ठीक है। जैसे आपका पिक्चर है, एक बार आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, वो डिजिटल फॉर्म में चला गया, डिजिटल फॉर्म में चला गया ना, यस सर। ठीक है, डिजिटल फॉर्म में चला गया, ठीक है। तो या फिर आप उसको ऑनलाइन आप अगर रखो या फिर किसी स्टोरेज डिवाइस में अगर आप उसको स्टोर रखते हो, तो वो किस फॉर्म में हमेशा रहेगा, डिजिटल फॉर्म डिजिटल फॉर्म में रहेगा, और वही आपकी क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है, वही आपकी क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है। आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके, सी द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी, क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। एनी ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट्स, कोई भी पर्सनल अकाउंट्स आपका ऑनलाइन बनता है, चाहे आपका फेसबुक हो जाए, चाहे ईमेल का अकाउंट हो जाए, चाहे जूम की अकाउंट है, मतलब कहीं पे भी कोई भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा। डिजिटल प्रॉपर्टी वो रहती है आपकी, सच एज ईमेल है, कम्युनिकेशन अकाउंट्स है, सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जो भी आपका अगर आपका अकाउंट है वो किस फॉर्म में है, डिजिटल फॉर्म में है, तो आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी वो बताएगा। शॉपिंग अकाउंट्स, ठीक है, शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपका अकाउंट्स आपने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, चाहे किसी भी एप्लीकेशन पे, चाहे आपका मिंत्रा हो जाए, चाहे आपका क्या हो जाए, जबांग हो जाए, फ्लिपकार्ट हो जाए, ठीक है, कहीं पे भी अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है, ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट्स पे, तो वो किस डिजिटल प्रॉपर्टीज में ही है, ठीक है। कोई भी आपका फोटो एंड वीडियो शेयरिंग अकाउंट्स है, ठीक है, कहीं से भी अगर आप फोटो शेयर करते हो, वीडियो शेयर करते हो, तो डिजिटल फॉर्म में है, तो डिजिटल प्रॉपर्टी को मेंशन करता है। वीडियो गेमिंग अकाउंट, ठीक है, कोई भी वीडियो गेम्स के अकाउंट अगर है तो किस में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में ही आपको रहेगा, ठीक है। हाँ हाँ, आई नो you all have very popular this game, you all among you all। ऑनलाइन स्टोरेज अकाउंट्स, ठीक है, एंड वेबसाइट्स एंड ब्लॉग दैट यू मे यूज, ठीक है, किसी भी वेबसाइट्स को, किसी ब्लॉग को आप यूज करते हो तो हमेशा डिजिटल प्रॉपर्टी है, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट को शो करेगा। इंक्लूडिंग कॉपीराइटेड materials, trademark, patent and any software or code such as software tools created by you or games or apps created by you, ठीक है, किसी भी गेम्स को बनाते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हो, किसी भी एप्स को अगर आप क्रिएट करते हो, तो हमेशा, ठीक है, वो सारे किस फॉर्म में रहेंगे, डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे आपके, डिजिटल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। हाँ, वही आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी हो जाती है अगर डिजिटल फॉर्म में है तो। यू मे बी हैव रिटन एंड ऑन एटसेट्रा, ठीक है, आप वहाँ इंटरनेट पे भी कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे आप एमएस वर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, आप एमएस वर्ड होता है ना, एमएस वर्ड, व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस वर्ड, यस सर। व्हाट इज द यूज ऑफ एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंट, हाँ, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, हाँ, ठीक है, तो किस फॉर्म में रहेगा, डिजिटल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अगर डिजिटल फॉर्म में है तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है, तो किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा डिजिटल फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। चाहे वो आप उसको स्टोर कर दो, चाहे ऑनलाइन शेयर कर दो, कहीं पे वो क्या रहेगा, डिजिटल प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? यस सर। यस ओके, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ऑनर, ठीक है, लाई विद द ऑनर, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर से आ रहा है, हाँ बोलो क्या है, हेलो। तो आपने जैसे बताया कि एमएस वर्ड में जो भी हम स्टोर करते हैं वो ऑनलाइन ही रहता है। ना ऑनलाइन नहीं रहता, जरूरी नहीं कि ऑनलाइन, ऑफलाइन भी रहेगा, ठीक है। अगर स्टोरेज डिवाइस में है ना, किसी स्टोरेज में, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी के कहीं मतलब डिजिटली ही रहेगा। हाँ, डिजिटल ही रहेगा, इस पे ध्यान देना आपको। वो किस फॉर्म में रहेगा, हमेशा डिजिटल फॉर्म में तो रहेगा। सर सिर्फ एमएस वर्ड की चीजें कि एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल जो भी हम चीज उसमें बनाते हैं। एग्जांपल बनाया, अगर आप कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो तो वो डिजिटल फॉर्म में ही है। अगर कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हो तो ऑनलाइन है वो, ऑनलाइन नहीं, जरूरी नहीं है ऑनलाइन हो, ऑफलाइन भी अगर है, अगर आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो डिजिटल ही है, ठीक है ना। कंप्यूटर में कोई चीज आता ही हो क्या हो जाता है, डिजिटल हो जाता है, ये तो चीज पता है ना आपको। कंप्यूटर में कोई भी जाता है, क्योंकि हमको तो पता है डिजिटल कंप्यूटर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सर मोबाइल में रहेगा तभी। हाँ हाँ बिल्कुल, जीरोज एंड वंस, उससे ज्यादा उसको पता ही नहीं है। डिजिटली अगर किसी चीज की भी बात करते हो तो जीरोज और वंस की ही वो बात करेगा। हमको पता है कि जैसे सपोज दैट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश, दो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ना, लेकिन कंप्यूटर किस में अंडरस्टूड करता है, जीरोज वन, उसका अपना बाइनरी लैंग्वेज है, बीच में कन्वर्टर रहता है, बीच में क्या रहता है, कन्वर्टर, ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर, याद आ रहा है,
यस सर, हाँ, इंटरप्रेटर कंपाइलर। बीच में लैंग्वेज प्रोसेसर रहता है, लैंग्वेज प्रोसेसर अपना काम करता है, ठीक है। चलिए, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाइट विद द ऑनर, ठीक है। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स लाई विद द ऑनर, ठीक है, कि जिसने भी जिस चीज को क्रिएट कर रहा है वो उसी से बिलोंग करेगा, ठीक है। सपोज दैट अगर मैंने बताया ना कि अगर आप MS वर्ड की डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो तो वो आपका है, वो किसका है, मेरा है। आपका है, ठीक है। अगर आपने बनाया, ठीक है, तो आपका वो हो गया, ठीक है। किसी सॉफ्टवेयर को आपने बनाया तो वो आपका है, ठीक है। किसी एप्स को आपने बनाया तो वो आपका हो गया, इंटेलिजेंस। हाँ। किसी वेबसाइट को आपने बनाया तो वो आपका वेबसाइट हो गया, ठीक है। किसी वेब पेज को आपने डेवलप किया तो वो वेब पेज आपका होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी राइट होती है तो वो किससे बिलोंग करता है, वो ऑनर से बिलोंग करता है, क्रिएटर से बिलोंग करता है, जिसने उसको क्या किया होगा, क्रिएट किया होगा, वही उससे क्या करता है, बिलोंग करता है। शी लीगली ए पर्सन हु रिलेटेड टू इंटेलिजेंस। हाँ, क्या कह रहे हो? घर के बीचों बीच बैठ गए हो क्या आप? कौन है? Legally, a person who has created it or the owner who has got it developed by paying legally is the legal owner of the digital property. Only the owner can be used and decide who all and it what form can his or her digital assets may be used by other, whether by making payments or buying it for the obtaining its license or using rights etc. ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कोई भी चीज अगर डिजिटली क्रिएट होता है तो जो उसका ऑनर होगा उसका क्या होगा, वो जो ऑनर होगा, जो क्रिएटर होगा, उसको पूरी तरीके से राइट होगी, वो जितना चाहे उतना वो इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ठीक है। जितना चाहे उतने उसके लिए क्या कर सकता है, प्राइस डिसाइड कर सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। एग्जाम्पल आप देखना चाहो, समझना चाहो तो सपोज दैट यू आर जस्ट क्रिएटिंग, इफ यू आर जस्ट क्रिएटिंग एनी सॉफ्टवेयर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ट्राई टू लिसन आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है। सर यस सर इंटेलिजेंस। सर अगर कोई हम कोई ऐप बनाए और वो हैक हो जाए तो हम हाँ। क्या सबूत देंगे कि हैक वो तो- हमारा ऐप है? नहीं तो आपका डिजिटल राइट होगा, कुछ ना कुछ आपका डिजिटल राइट्स होंगे, ठीक है। हैक हो गया तो फिर तो मुश्किल है। हैकिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है, हैकिंग का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सपोज दैट आपका अकाउंट मैंने ऐप हैक भी कर हैक होते लिया, हैं क्या? हाँ बिल्कुल होगा, मैंने बताया ना, कॉपी होगा, बिल्कुल होगा, कॉपी सर होगा। अकाउंट हैक होता है ना, ऐप भी हैक होता है, मतलब ये ऐप पूछ रही थी। ऐप हैक होता है। लिसन मोबाइल भी हैक होता है सर। ऐप हैक होने से मतलब है तो कि वो आवाज जैसे मान लो नहीं कि आ रही है। उसके उस तरीके से उसका क्रिएट किया गया, Features. उस तरीके से उसका क्या किया गया, हेलो। क्रिएट किया गया, ठीक है। Create उसको वो किया हैक कर सकता है, उसका इन्फॉर्मेशन वो वहां से लेगा कि हाँ हम्म। इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया, एक नया सॉफ्टवेयर वो डेवलप कर सकता है उस तरीके से रिलेटेड।